Hello and welcome in this new lecture. In this lecture series, now we are talking on psychoanalytic criticism. In the course of psychoanalytic criticism, in this lecture, we will be talking on C.G. Jung, that his full name is Carl Gustav Jung. Remember that his name, last word, that is Jung, is pronounced as Jung. Okay, so he was born on 26 July 1875 and died in 1961 on 6th June. And he was a Swiss psychiatrist and psychoanalyst. He founded analytical psychology. He treated the human self as the totality of all psychic process. ठीक है, इनका जो ह्यूमन सेल्फ का ट्रीटमेंट था, मींस ह्यूमन साइकोलॉजी की इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, दैट वाज ऑफ टोटलिटी ऑफ साइकिक प्रोसेस। टोटल जो मेंटल प्रोसेस होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस थी इनकी थियरी। आगे देखते हैं, he rejected Freud. Actually, he collaborated for several years with Freud, but later on, he separated from Freud and developed his own theory. And this also affects his own career as well as Freud. But he rejects Freud's theory, especially theory of libido, and which was restricted to sexuality. And he proposed that libido was energy that could be channelized into any field. Means, according to Freud, this libido was sex energy. But Jung said that this libido is energy that could be channelized into any field, not only in sex. Okay, so thereafter he departed from Freud and shifted to the idea of archetypes. Here becomes popular the idea of archetypes, and here is the development of archetypical criticism. ठीक है, यहीं से आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म का जन्म होता है। आर्केटाइप्स की बात होती है, जिस पे अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और इन्होंने जो आर्किटेक्चरल का आइडिया सजेस्ट किया, देन यूंग सजेस्टेड दैट द ह्यूमन इमेजिनेशन draws upon images and ideas from myth and legends that occurs across cultures and time spans. मीन्स इनका जो सजेशन था वो ये था कि जो ह्यूमन इमेजिनेशन है उसका जो स्पैन है वो अक्रॉस कल्चर है, अक्रॉस टाइम स्पैन है, पूरे में वो इमेजिनेशन फैला होता है और अपनी इमेजेस और आइडियाज को ड्रा करता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसका जो बेसिक रिलेशन होता है मिथ के साथ होता है। रिमेंबर दैट आर्केटाइप्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू मिथ। ठीक है, इसी को मिथिकल क्रिटिसिज्म भी कह लेते हैं और इसी को डेवलप करके बाद में कहा गया आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, नॉर्थप फ्राई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है इससे रिलेटेड, और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्किटेक्चरल क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखेंगे, ही टर्म्ड आर्किटाइप्स फॉर दीज इमेज, और ये जो इमेजेस हैं उनके लिए इन्होंने जो टर्म दिया वो टर्म था आर्किटाइप्स। आपसे क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है कि कॉइनेस ऑफ द टर्म आर्किटाइप्स। ठीक है, तो या फिर आर्किटाइप्स क्या है, देन इमेजेस इन टोटलिटी इन general psychology of human being is archetypes which are based on myth and time spans. According to Jung, art often exhibited universal images, the archetypes from the collective concepts. Remember that यूंग का जो कहना दैट इज कि जो आर्ट है वो क्या करता है, एक यूनिवर्सल इमेज को प्रेजेंट करता है। ठीक है, और यही यूनिवर्सल इमेज क्या है, आर्केटाइप्स है। रिमेंबर दैट दिस यूनिवर्सल इमेज, यहीं पर लिख लीजिए, यूनिवर्सल image is equal to archetypes. ठीक है, इसी को इन्होंने क्या टर्म दिया था, आर्केटाइप्स। ठीक है, और ये जो है कहां से आती है,
हमारे जो कलेक्टिव कॉन्शस होता है वहां से निकल करके आती है, दैट इज आर्केटाइप्स, ठीक है, एंड इज आल्सो रिलेटेड टू मिथ्स एंड कैनेडियन थियर्स, रिमेंबर हिज नेम नॉर्थप फ्राई, नॉर्थप फ्राई developed Jungian theories into study to study literary text and this is known as archetypical criticism. अब यहाँ पर आप दो चीजें याद रखिएगा, that is Northrop Frye is an is a Canadian literary critic. Remember this point. ये एग्जाम में पूछा गया है कि नॉर्थ फ्राई कहाँ के हैं, कैनेडियन है, अमेरिकन है, इंडियन है, एटसेट्रा एटसेट्रा. First thing. And second thing is that he is related to archetypical criticism. He has studied literary theory, he has studied myths, and that was developed as archetypical criticism. तो ये भी पूछा गया है, मैचिंग में पूछा गया, अलग से पूछा गया. that Northrop Frye is related to archetypical criticism and he is a Canadian literary critic. These 3 points are very important. Okay. And his archetypical criticism is based on the ideas of C.G. Jung. C.G. Jung, complete name Carl Gustav Jung, Swiss psychoanalyst and psychiatrist. Okay, so next thing, archetypical criticism. देखिए archetypical criticism क्या है? Archetypical is a type of analysis, a type of analytical theory that imparts a text by focusing on recurring myths and archetypes in the narrative, symbols, images, and character types in literary works. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ये आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म है ये एक्चुअली एक आर्केटिपिकल थियरी है, ठीक है, जो किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करती है, उस पर फोकस करती है, किस बात पर? जो उसमें रिलेटेड मिथ्स हैं, रिकरिंग मिथ्स हैं, और उन मिथ्स के साथ साथ आर्केटाइप्स और नरेटिव, सिंबल, इमेजेस और कैरेक्टर टाइप, इन सभी पर फोकस करती है. एंड इट वाज द नॉलेज एक्नॉलेज्ड एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और इसको जो है एक फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया? आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ मॉड बॉडकिन्स बुक आर्केटिपिकल पैटर्न्स इन पोएट्री दैट वाज पब्लिश्ड इन 1934. सो रिमेंबर मॉड बॉडकिन and his work archetypical patterns in poetry that was published in 1934. After this publication of Maud Watkins archetypical pattern in 1934, that is the this field of study, that is the archetypical criticism, is considered as a field of literary criticism in the सर्किल ऑफ स्कॉलर्स. मीन्स कि इस बुक के बाद इसकी चर्चा शुरू हुई और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको एक्नॉलेज कर लिया गया. तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म की बिगिनिंग कब और कहाँ से है, तो मॉड बॉडकिन के वर्क से है, दैट इज आर्केटिपिकल पैटर्न इन पोएट्री. और ईयर पूछा जाए तो ईयर है 1934. इससे पहले पूछा जाए कि इसका आइडिया कहाँ से आता है, देन इसका आइडिया साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में आता है, सीजी यूंग के वर्क से आता है. उन्हीं के आइडियाज से डेवलप होकर के मॉड बॉडकिन का वर्क पब्लिश हुआ, और इसी को डेवलप किया किसने? इसी को डेवलप किया कैनेडियन क्रिटिक नॉर्थरप फ्राई ने. ठीक है, द ओरिजिन्स आर रूटेड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोएनालिसिस आइडियाज ऑफ सीजी यूंग. ठीक है, तो इसके साइको एनालिसिस के अलावा कहाँ से इसका आइडिया आता है? सोशल एंथ्रोपोलॉजी से. ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी मिथ्स की स्टडी की गई थी और वहां से इसका जो आइडिया निकल करके आता है. आगे देखते हैं. गेट्स पॉपुलरिटी इन 1940s and 1950s due to the works of Canadian literary critic Northrop Frye, and who was born in 1912 and died in 1991. Remember that this work was published in 1934, means 1930s में पहली बार इसकी चर्चा हुई, and thereafter after 6 years in 1940s and 50s this criticism, this type of criticism, this type of study got popularity because of the works of Canadian critic Northrop Frye.
Northrop Frye codified literary symbols based on what he termed mythoi. उन्होंने एक टर्म दिया मिथाई. अब मिथाई भी पूछा जा सकता है. हु कॉइंड द टर्म मिथाई? मिथाई इज कॉइंड बाय नॉर्थ फ्राई एंड ही कोडिफाइड सिंबल्स ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन दीज मिथाइज. मीन्स उन्होंने लिटरेरी सिंबल्स को लिटरेचर में जो सिंबल्स यूज किए गए हैं उनको कोडिफाई किया और क्या नाम दिया? मिथाइज. ठीक है. आगे कहते हैं इनका एक जो फेमस वर्क है और ये जो है आर्केटाइपिकल क्रिटिसिज्म का बहुत ही फेमस वर्क है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म. दिस एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड इन 1957. रिमेंबर दिस वर्क बिकॉज यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं. अब यहां से तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं. एक तो मैचिंग में आ सकता है. मैचिंग में पूछा जाएगा तो एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म एक तरफ होगा, दूसरी तरफ दो चीजें हो सकती हैं. या तो नॉर्थर फ्राई हो सकते हैं या तो आर्केटाइपिकल क्रिटिसिज्म हो सकता है. तीसरा अगर ईयर वाइज करने को दिया तो 1957. दूसरी चीज ये पूछ सकता है कि इसका राइटर कौन है. ठीक है, इंडिविजुअली पूछ सकता है या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिलेटेड टू आर्केटाइपिकल क्रिटिसिज्म. ठीक है. तो ये दो तीन तरीके के जो वर्क्स हैं, सॉरी क्वेश्चंस हैं, वो इस एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म से बन सकते हैं. इंपॉर्टेंट वर्क है, रिमेंबर दिस. आगे देखेंगे इन्होंने एक आइडिया दिया दैट इज ही एसोसिएटेड सीजन्स विद नैरेटिव पैरेलल्स. ठीक है. तो इन्होंने नैरेटिव पैरेलल्स के साथ, इसमें भी याद रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा यूज किया, कौन सा नहीं यूज किया, कौन सा किसके लिए है, मैचिंग के लिए दे सकता है. तो समर कॉमेडी, ऑटम ट्रेजेडी, विंटर irony or satire, and spring that is romance. Remember that spring is always symbolized romance, that is a weather of a season of romanticism. And remember that winter is not so good and so better, that is why this is irony and satire. And autumn is the season of leaves, falling leaves and barrenness, that is why you can associate it with tragedy. And summer is a pleasant weather, not for us, for people of western world. ओके, जो ठंडे प्रदेश के लोग हैं उनके लिए समर जो क्या है वो एक प्लीजेंट वेदर है. ठीक है. इसलिए क्या है, समर को उन्होंने किससे एसोसिएट किया? कॉमेडी से किया. ऑटम में सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, सारे जंगल उजाड़ दिखते हैं, इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा? दैट इज ट्रेजेडी. ठीक है. और विंटर आयरनी एंड सटायर, एंड देयरआफ्टर स्प्रिंग इज सीजन ऑफ रोमांस. ठीक है. तो रिबर्थ ऑफ द हीरो, और इसके लिए एक एक लाइन भी लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि द बर्थ ऑफ हीरो समर एंड मूवमेंट टूवर्ड्स द डेथ और डिफीट ऑफ द हीरो. ठीक है. ट्रेजेडी क्या है? जो हीरो है उसकी डेथ है या डिफीट है. एंड आयरनी सटायर इज द हीरो इज एब्सेंट. मीन्स आयरनी और सटायर में कहीं हीरो नहीं होता. एंड लास्ट वन इज दैट इज स्प्रिंग, दैट इज रोमांस, एंड हियर इज रीबर्थ ऑफ द हीरो इन रोमांस. ठीक है. तो ये चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है. नेक्स्ट देखेंगे कि इंपॉर्टेंट वर्क है द गोल्डन बाग, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. और लिखा किसने है? J.G. फ्रेजर. याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन एक बार गोल्डन बाग पूछा गया और वहां पर जो नाम है राइटर का ये गलत हो गया था. एक्चुअली में फ्रेजर नाम के दो राइटर हैं. ठीक है. तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है. तो द गोल्डन बाग रिटन बाय सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, J.G. फ्रेजर. ठीक है. तो ये चीज याद रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. कौन है ये J.G. फ्रेजर? ही इज एन स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिज दिस वर्क द गोल्डन बाग इज आल्सो अ की वर्क फॉर द this type of criticism that is known as archetypical criticism. Clear? आगे देखेंगे हम लोग दैट इज फेमिनिस्ट साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म. कुछ बातें इस पर भी करते हैं बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं. तो साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है? ठीक है. तो साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट
explain women's operation as rooted within psychic structure and rein, uh, reinforced by the continual repetition or reiteration of relational dynamics formed in infancy and childhood. अच्छा, एक चीज आपको यहीं से, जो इसका नाम है, यहीं से चीजें क्लियर होंगी, दैट इज फेमिनिस्ट साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। मीन्स ये है कि जहां पर फेमिनिज्म और साइको एनालिसिस थियरीज को मिला दिया जाए, वो क्या है? साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म या फेमिनिस्ट साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। क्लियर? तो यहां पर फेमिनिस्ट चीजें और साइको एनालिटिक दोनों को मिला दिया। अब जरा सा मिलाइए, देखिएगा फेमिनिज्म क्या करता है, फेमिनिस्ट थियरी क्या करता है? विमेन के ऑपरेशन की बात करता है, विमेन की इक्वलिटी की बात करता है, इक्वल राइट्स की बात करता है, ठीक है, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों की बात करता है। तो सेम इन द मैटर दैट इज साइको एनालिसिस क्या करता है? साइको एनालिसिस वर्क्स ओवर माइंड एंड थिंकिंग। ठीक, जब फेमिनिस्ट थियरी यानी कि फीमेल ऑपरेशंस को मेंटल लेवल पर, मेंटल टॉर्चर के लेवल पर समझा जाएगा, देन दिस इज फेमिनिस्ट साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। अब इसकी चीजें जो जैसे विशेष रूप से क्या होता है, जैसे बचपन में ट्रॉमेटिक चीजें होती हैं, असॉल्ट्स होते हैं, तो उन चीजों पर भी बड़ा फोकस किया गया। इसमें जो हिस्टीरिया था, हिस्टीरिया के कॉजेज में देखा गया कि देयर इज सम सेक्सुअल असॉल्ट behind that. ठीक है, most of girls who are hysteric has passed through some traumatic situations in her uh, childhood, traumatic experiences in her childhood, so they are now hysteric. So यहाँ पर साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म इसी चीज की स्टडी करता है। So because of these deeply engineered patterns, psychoanalytic feminists wanted to alter the experiences of early childhood and family relations, as well as linguistic patterns that produce the reinforce masculinity and femininity। यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है masculinity and femininity, इस पर भी फोकस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस within the family or outside the family. Remember that point, there are number of women in the world, not only in the world but also in our India as well as in our society also, uh, who are assaulted and feel some traumatic and some taboo experiences related sex within their family, and from some her near and dear ones, some her relations, and many more. So, next thing, critical of Freudian and non-Freudian notions of women as biologically, physically, and morally inferior to man. Psychoanalytic feminists addressed political and social factors affecting the development of male and female subject, like radical feminists they saw as the key issues sexual differences and women's otherness in relation to men। देखिए, फ्राइडियन कॉन्सेप्ट क्या था? फ्राइड ने फीमेल सेक्सुअलिटी का भी खूब स्टडी की, उन्होंने हिस्टीरिया की स्टडी की। देन इन्हीं सारी चीज़ों को, जिसमें वेमेन बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंड मॉरल इंफीरियर्स बताया गया, ठीक है, उन सारी चीज़ों की स्टडी यहाँ पर रेडिकल फेमिनिज्म के रूप में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो मेजर स्कूल्स हैं, ठीक है, द टू मेजर स्कूल्स ऑफ साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म आर फ्राइडियन एंड लकानियन। ठीक है, दोनों फेमस क्रिटिक हैं, थियरिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं इस थियरी से रिलेटेड, एंड इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दो स्कूल्स हैं। फर्स्ट वन इज फ्राइडियन फेमिनिस्ट स्कूल और फ्राइडियन स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट
psychoanalytic criticism, and second one is the Lacanian feminist psychoanalytic criticism. ठीक है, तो पहला समझते हैं फ्राइडियन फेमिनिस्ट. फ्राइडियन फेमिनिस्ट मोस्टली एंग्लो अमेरिकन, ये मोस्टली एंग्लो अमेरिकन है, रिमेंबर दिस पॉइंट, and more concerned with the production of male dominance and the development of gendered subject in societies where women are responsible for mothering. ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहाँ कर लीजिए, इसको नंबर 1 करिए, तो नंबर 2 कर दीजिए. ठीक है, लकानियन फेमिनिस्ट क्या करते हैं, मोस्टली ये फ्रेंच हैं, एंड एनालाइज लिंक बिटवीन जेंडर्ड आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है. जो लकानियन है वो जेंडर आइडेंटिटी और लैंग्वेज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. इन चीज़ों पे हम लोग चर्चा आगे भी फेमिनिज्म पर चर्चा करेंगे. मुश्किल से आई होप कि 1 या 2 लेक्चर इस पर होने हैं, और उसके बाद हम लोग फेमिनिज्म पर मूव करेंगे. देन वहाँ इस चीज़ को हम लोग और बेटर समझ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो जो लकानियन स्कूल है वो लैंग्वेज और जेंडर आइडेंटिटी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके बीच के लिंक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और मोस्टली ये फ्रेंच है. ठीक है, और जो फ्राइडियन स्कूल है मोस्टली एंग्लो अमेरिकन है, एंड इनका क्या जो स्कोप है, जो फोकस है, वो है प्रोडक्शन ऑफ मेल डोमिनेंस and development of gendered subjects in societies where women are responsible for mothering. ठीक है, तो मदर मदर कह रहे हैं, फीमेल एंड मेल रिलेशन और डोमिनेंस की जहां पर स्टडी हो रही है, दैट इज फ्राइडियन. ठीक है, तो फ्राइडियन स्कूल है. आगे देखते हैं सम क्लासिक साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट टेक्स्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, इनको चाहे अलग से लिख लें, नोट्स में लिख लें, या स्क्रीनशॉट अलग से लेकर के रखें, या फिर आप इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने की दीवार पर चिपका करके रखें. ये वर्क्स आपको याद होने चाहिए. इनकी चर्चा हम लोग आगे भी फेमिनिज्म में भी करेंगे, तो यहाँ भी आप इसको समझिए, वहां पे आगे हम लोग समझेंगे. तो देखिएगा, पहला वर्क जो है जुडिथ बटलर का है, वर्क है जेंडर ट्रबल. सेकेंड वाज नॉम चॉम्स्की का वर्क है, नैन्सी चोडरो का वर्क है. नैन्सी चोडरो का जो वर्क है द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग. ठीक है, ये नैन्सी चोडरो जो है ये फ्राइडियन स्कूल से हैं, एंड सी टॉक्स द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग. एंड देयर आफ्टर फेमस वर्क एंड इंपॉर्टेंट वर्क है in the field of psychoanalytic criticism as well as in feminist studies, The Laugh of the Medusa, very famous work, and this explores not only male female relation but also the female and female relation, and somehow it explores that females are also cause of trouble for female, and this can be seen in society also. And thereafter next work is that Alice doesn't and the practice of love, that was written by Teresa de Lourdes. And other is the Mermaid and the Minotaur, written by Dorothy Dinnerstein. And the last work is number 6, that is Volatile Bodies, and written by Elizabeth Brazes. Okay, so these 6 works are very important in the field of psychoanalytic feminism. This is our feminist psychoanalysis criticism. So remember all these work, and next 3 or 4 works are there also. That is Lucy Irigary's This Sex Which Is Not One, very important work. This has been asked, and Julia Kristevas Desire in Language and Tale of Love, and Juliet Mitchell Women's Estate and Psychoanalysis and Feminism, and Jacqueline Rose Feminine Sexuality.
these works are very important for your examination purpose. So next is Jacques Lacan and Lacanian concepts. So we'll discuss these concepts in next lecture. Thank you for connecting us.